हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल केमिस्ट्री इज लाइफ। आज की वीडियो जो है बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की वीडियो में हम थर्ड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर नंबर 12 शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक प्लस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है। इस पेपर के अंदर का जो फोर्थ यूनिट है, जो कि है अल्कलॉइड्स, विटामिन्स एंड पेस्टिसाइड्स, हम ये टॉपिक को आज शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में आई हैव ऑलरेडी टॉट यू द सिलेबस, पेपर पैटर्न, चैप्टर वाइज मार्किंग सिस्टम एंड द सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ओके, तो जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पर वीडियो की लिंक है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक है, तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि आपको सिलेबस पता हो कि हमें स्टडी क्या करना है। उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है अल्कलॉइड्स का, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो हम इसको कवर करेंगे स्क्रीन के ऊपर। सो वी आर ऑन द स्क्रीन नाउ। This is your syllabus of unit. This is fourth unit, alkaloids, vitamins and pesticides. This is the syllabus of your chapter. Now, I have already taught you the syllabus. We are directly going to the main portion, that is the alkaloid. The first part of this chapter is alkaloid. Now the introduction part of the alkaloid is the alkaloids are the class of basic naturally occurring organic compounds that contain at least one nitrogen atom. This is the definition of alkaloids. These are the naturally occurring organic compounds that contain at least one nitrogen atom. Okay, this group also includes some related compounds which are with neutral and evenly weak acidic properties. Okay, so alkaloids are the huge group of naturally occurring organic compounds which contain nitrogen atom, and its also other compounds as amine or amido in some cases. Mostly these are the optically active in their structure. So just alkaloid is the generally organic compounds having at least one nitrogen atom. These are the compounds of nitrogen and are called as alkaloids. This was the introductory part. Then the second point is occurrence of these alkaloids. Now generally the alkaloids, we generally take alkaloids every morning. Okay, millions of people take these alkaloids just with the cup of a tea or a cup of a coffee. Okay, the alkaloid which is present in the coffee is caffeine, so the caffeine is also an alkaloid. Okay, again the alkaloid also occurs in the animal kingdom, just unlike plants. Okay, the source of these molecules in the animal's body can be endogenous or exogenous. Again, the alkaloids are rarely found in lower plants like algae, fungi, gymnosperms and monocotyledon, etc. Okay, monocotyledons are having a single seed in their fruits. Okay, so these are the occurrence of these alkaloids. The alkaloid content varies with the season, age or locality. Alkaloids are basic in nature. It is expected that in plants they exist as a salt of acids such as acetic acid, citric acid in the lemon, okay, oxalic acid, malic acid, etc. So this was about the occurrence of these alkaloids. Then the main part of this alkaloid is the extraction process of this alkaloid. Okay, this process includes total 6 stages. Okay, 6 steps are there, and generally the flow chart of these stages I have given here. Then we will go one by one. The extraction. Now how will the extraction of this alkaloid takes place? These are not present naturally. Okay, हमको क्या करना पड़ता है, इस अल्कलॉइड्स को जो है प्लांट्स में से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उसमें से हमें उसे निकालना पड़ता है. सो इस तरह से कैसे निकालेंगे, उसकी प्रोसीजर है वन बाय वन. द फर्स्ट प्रोसीजर ऑफ दिस, द स्टेप फर्स्ट इज द ड्राइड एंड पाउडर्ड प्लांट ऑफ मटेरियल इज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड. ओके, हमें क्या करना है, ड्राइड और जो प्लांट की जो पाउडर फॉर्म में है हमें वो लेना है और इसे फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड विथ पेट्रोलियम ईथर. उसे पेट्रोलियम ईथर से सबसे पहले वॉश करेंगे. ओके, उसको वहां से वॉशिंग देने के बाद देन फिल्टर्ड फॉर रिमूवल ऑफ सोल्यूबल फैट्स, उसको बाद में फिल्टर करेंगे. सेकेंड स्टेप, द रेसिड्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज एक्सट्रैक्टेड विथ मिथानॉल टू रिमूव सेल्यूलोजिक एंड अदर इनसॉल्युबल मटेरियल. जो फिल्टर करने के बाद जो ऊपर का रेसिड्यू होगा वो हमारे काम का है रेसिड्यू, उसको फिर से मिथानॉल के साथ एक बार वॉशिंग देंगे. ओके, उसको उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे. किसके लिए, कि उसके अंदर जो रिमूव करने के लिए, क्या, टू रिमूव द सेल्यूलोजिक एंड अदर इनसॉल्युबल मटेरियल. जो उसके अंदर अदर इनसॉल्युबल मटेरियल्स हैं और जो भी सेल्यूलोज है उसको क्या करना है, रिमूव करने के लिए. एंड ऑब्टेन द फिल्टर इज इवेपोरेटेड, और उसके बाद जो फिल्टर नीचे आने वाला है उसको इवेपोरेट करना है. देन द थर्ड स्टेप, द इवेपोरेटेड मास इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, acidified to pH2 and finally steam distilled to remove methanol. और जो मिथानॉल हमने ऐड किया था सेकेंड स्टेप में, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा वाटर में, एसिडिफाई करना पड़ेगा, जिसका एसिडिक
जो है हमें pH 2 रखना है, उसका pH 2 रखना है, और उसको आखिर में स्टीम डिस्टिलेशन देना पड़ेगा कि उसके अंदर का जो मिथेनॉल जो हमने डिसॉल्व किया था वो इवेपोरेट हो जाए। तो ये थर्ड स्टेप। इन फोर्थ स्टेप द ऑब्टेन रेसिड्यू इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सेवरल डेज। जो मिथेनॉल रिमूव होने के बाद जो रेसिड्यू होगा हमारा, उसको क्या करना है, सेवरल डेज, कुछ दिनों के लिए उसको रेफ्रिजरेटर में रखना है, या फिर उसको हीट करना पड़ेगा कितना, मोल्टन पैराफिन के साथ, टू रिमूव स्टेप सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी। उसके अंदर जो इम्प्यूरिटी है उसे निकालने के लिए एक तो हम उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, या फिर आप उसको हीटिंग कर सकते हैं किसके साथ, पैराफिन ऑयल जो होता है, उसको पैराफिन ऑयल ऐड करके उसको क्या करना पड़ेगा, हमें हीट देना पड़ेगा, जिससे कि अंदर की सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी जो है वो रिमूव हो जाए। इन द फिफ्थ स्टेप द फिल्ट्रेट इज एक्सट्रैक्टेड विद द ईथर और क्लोरोफॉर्म टू रिमूव वाटर सॉल्युबल नॉन बेसिक ऑर्गेनिक मटेरियल। अब जो वाटर सॉल्युबल नॉन बेसिक ऑर्गेनिक मटेरियल उसको निकालने के लिए हमें अंदर फिर से ईथर या फिर क्लोरोफॉर्म, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, उसको ऐड करना पड़ेगा। एंड देन स्टीम डिस्टिल्ड व्हेन द स्टीम वोलाटाइल अल्कलॉइड्स आर सेपरेटेड, उसको फिर से स्टीम डिस्टिलेशन देना पड़ेगा। एंड इन द लास्ट स्टेप द सॉल्यूशन ऑफ रिमेनिंग अल्कलॉइड, ये सब करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग अल्कलॉइड का सॉल्यूशन बचने वाला है, साल्ट, इज अल्कलाइन एंड अगेन एक्सट्रैक्टेड विद द ईथर और क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म या ईथर का उसको फिर से हमें वॉशिंग देना पड़ेगी उसको, ओके, जिससे कि अंदर की इम्प्योरिटी जो भी है वो इवेपोरेट हो जाए। एंड ईथरल लेयर, जो ईथर का जो लेयर है बाद में जो बचेगा, इज ऑब्टेन्ड, हमें क्या मिलने वाला है, ईथरल लेयर मिलने वाला है। आफ्टर दिस एक्सट्रैक्शन इज इवेपोरेटेड, जो ईथर का लेयर है जो बाद में हमें मिलेगा उसको हमें फिर से थोड़ा सा इवेपोरेट करना है, जो ईथर जो है वो रिमूव होगा, और जो आखिर में जो बचेगा क्रूड मटेरियल वो क्या है, अपना क्रूड एल्कलॉइड है जो एंडिंग में बचने वाला है। ओके, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जिसमें सबसे पहले जो था इस चार्ट में देखिए, पाउडर ड्रग थी, पाउडर प्लांट मटेरियल था, रॉ मटेरियल था। सबसे पहले उसके अंदर हमने ईथर डाला, ओके, उसको वॉशिंग दी अच्छे से, फिर उसको फिल्ट्रेशन किया। तो उसके अंदर जो दो पार्ट्स होंगे, ये होगा फिल्टर पेपर के ऊपर जो होगा रेसिड्यू होगा, और ये जो है फिल्ट्रेट है नीचे का, इसके अंदर तो अपने कुछ काम का मटेरियल नहीं है, ठीक है। ये जो रेसिड्यू है इसको सेकंड स्टेप में क्या करना है, फिर मेथनॉल डालना है, उसको वॉशिंग देनी है, फिर से उसको फिल्ट्रेट करना है, ओके। देन उसके बाद जो फिल्टर करने के बाद जो ऊपर का रेसिड्यू है फिर वो हमारे काम का है। इन द थर्ड स्टेप इसको हमें डिसॉल्व करना है वाटर के अंदर, ओके। उसकी जो एसिडिटी है, जो पीएच मेंटेन करना है वो pH 2 पे मेंटेन करना है हमें। उसके बाद फिर से उसको स्टीम डिस्टिलेशन देना है और फिर से फिल्ट्रेट करना है। फिल्ट्रेट करने के बाद जो रेसिड्यू आएगा वो ऊपर के साइड रहेगा सॉल्यूशन, और जो ईथर लेयर है वो नीचे रहेगा, ठीक है। जो ऊपर का रेसिड्यू फिर से वो जो एसिड सॉल्यूशन है जो कि pH 2 पे हमने मेंटेन किया था, उसको वापस से ईथर से वॉश करेंगे, ओके। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे इन सम केसेस, एंड देन वापस से फिल्टर करने के बाद जो ईथर सॉल्यूशन होगा, ये रेसिड्यू तो निकल के चला जाएगा, ठीक है। जो ऊपर का ईथर सॉल्यूशन है, सॉरी, ये रेसिड्यू जो ऊपर होगा, जो नीचे आएगा सॉल्यूशन होने के बाद, फिल्ट्रेट होने के बाद, ओके, उसको हमें थोड़ी देर के लिए इवेपोरेट करना है, और इवेपोरेट होने के बाद जो अंदर क्रूड अल्कलॉइड बचेगा वो हमारे काम का है। दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट, जो हमारा जो फाइनल अल्कलॉइड हमें चाहिए वो हम इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कहाँ से? पाउडर्ड रॉ मटेरियल से, ठीक है। प्लांट्स के जो रॉ मटेरियल्स होंगे उसको इस तरह से प्रोसीजर करने के बाद, टोटल 6 स्टेप्स हैं इसके, करने के बाद जो हमें आखिर में मिलने वाला है वो होगा हमारा अल्कलॉइड। जैसे कि हम देखते हैं कैफीन, कॉफी का जो पाउडर होता है तो वो प्लांट से निकलता है, ठीक है। तो प्लांट से इस तरह से प्रोसीजर करने के बाद हमें आखिर में जो मिलता है वो है क्रूड अल्कलॉइड, जो कि हमारे जस्ट लाइक दैट कॉफी, ओके, कैफीन जो होता है उस तरह से। सो दिस वाज द टोटल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द अल्कलॉइड. So we will go further. The next point, the classification of alkaloid. Now the classification of alkaloid is generally classified as follows. Okay, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर चार्ट दिया है. तो फर्स्ट टाइप है ट्रू अल्कलॉइड. अभी ट्रू अल्कलॉइड क्या होता है? The true alkaloid is defined as it is derived from the amino acids that have nitrogen in their heterocyclic ring. यानी कि ट्रू अल्कलॉइड वो होते हैं जिनके हेटेरोसाइक्लिक रिंग क्या होता है, एक नाइट्रोजन होता है उनके हेटेरोसाइक्लिक रिंग में. डिराइव्ड फ्रॉम द एसिड्स, ऐसे एसिड से बनाए निकाले जाते हैं जिसके अंदर क्या है, दे हैव एटलीस्ट वन नाइट्रोजन इन दैट हेटेरोसाइक्लिक रिंग. यहाँ पर देख सकते हैं हम नाइट्रोजन यहाँ पर दिया गया है स्ट्रक्चर में. ओके, सो इससे जो एल्कलॉइड्स मिलेंगे इसको क्या कहेंगे, ट्रू अल्कलॉइड्स. एग्जांपल है एट्रोपाइन. ओके, उसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी दिया गया है यहाँ पे. द नेक्स्ट सेकंड वन इज प्रोटो अल्कलॉइड. सो दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड्स दैट डोंट हैव नाइट्रोजन इन द हेटेरोसाइक्लिक रिंग. अगर हम यहाँ देखें जितने भी रिंग्स हैं, ओके, इसमें नाइट्रोजन नहीं है, इस रिंग में भी नाइट्रोजन नहीं है, इस रिंग में भी नाइट्रोजन नहीं है. ओके, तो ऐसे अमाइनो एसिड से जो अल्कलॉइड्स डिराइव होते हैं जिसके अंदर एक भी नाइट्रोजन एटम नहीं होता है, दिस डोंट कंटेन एनी
nitrogen in their heterocyclic ring are known as proto-alkaloids. Example है Taxol. And the third one is pseudo-alkaloids. So these are not derived from the amino acids but have nitrogen in their heterocyclic ring. Amino acids से तो नहीं बनते but उसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन है उसके heterocyclic ring के अंदर, तो ऐसे इस अल्कलॉइड्स को क्या कहेंगे, pseudo-alkaloids. Example is caffeine. जिस तरह जिससे कॉफी हम पीते हैं उसके अंदर क्या होता है, कैफीन. स्ट्रक्चर है उसका ये इस तरह से, ठीक है. So these are generally classification of alkaloids is in these three types: true alkaloid, proto-alkaloids, pseudo-alkaloids. ये उसकी definition और उसके examples हैं. Then the chemical classification of alkaloids is mainly into two parts. Okay, chemical classification जो है दो parts में divide होता है. The first is non-heterocyclic alkaloids. जैसे कि हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर क्या है, इसके अंदर एक भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट नहीं होती है. ओके, दिस ग्रुप ऑफ अल्कलॉइड्स डज नॉट हैव एनी वन हेटेरोसाइक्लिक रिंग इन देयर स्ट्रक्चर. इस नॉन हेटेरोसाइक्लिक अल्कलॉइड्स के अंदर एक भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट नहीं होती है. एग्जांपल है इफिड्रिन, जो उसका स्ट्रक्चर है इसके अंदर एक भी हेटेरो एटम के साथ कोई भी रिंग नहीं है. ओके, सो दिस वाज द नॉन हेटेरोसाइक्लिक अल्कलॉइड्स. देन द सेकंड पार्ट इज हेटेरोसाइक्लिक अल्कलॉइड्स. In this group, alkaloids have at least one heterocyclic ring in their structure. Simple है, heterocyclic alkaloids यानी कि ऐसे alkaloids है जिसके अंदर at least one hetero atom है. ओके, heterocyclic ring है उसके अंदर. अगर हम देखें एग्जांपल तो pyridine, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं नाइट्रोजन एक hetero atom है और इस तरह से क्या है, heterocyclic ring है. Quinoline having nitrogen. Okay, so it is a heterocyclic ring and this is isoquinoline. क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन में डिफरेंस ही है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 नंबर पे होता है और यहाँ पर 2 पोजीशन पे होता है. ओके, सो these are the quinoline and isoquinoline are the examples of heterocyclic alkaloids. And the next point is general properties of alkaloids. Okay, alkaloids are generally colorless, crystalline in nature and non-volatile. ओके, ये volatile नहीं है, अगर volatile होते तो फिर ईथर के साथ evaporate हो गए होते. ओके, these are non-volatile solids. A few such as कोनिन, ओके, एंड निकोटीन आर लिक्विड्स एंड फ्यू इवन कलर्ड. कुछ कलर्ड भी है, ओके, और कुछ लिक्विड फॉर्म में भी है निकोटीन की तरह. एग्जांपल जो है कलर्ड वाला वो है बार्बेरिन, इज अ येलो इन कलर. अल्कलॉइड है बार्बेरिन और ये येलो कलर में है. जनरली दिस आर द कलरलेस बट कुछ जो है कलर में भी आते हैं. सो दिस वाज द बार्बेरिन विच इज येलो इन कलर. देन द सेकंड प्रॉपर्टी इज द फ्री बेसिस अल्कलॉइड्स देमसेल्व्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. जो अल्कलॉइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर है बट सॉल्युबल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या है, ये सॉल्युबल है. द थर्ड प्रॉपर्टी इज मोस्ट ऑफ द अल्कलॉइड्स आर लिवोरोटेटरी विच इज ऑप्टिकली एक्टिव अल्दो अ फ्यू आर डेक्स्ट्रोरोटेटरी. इसका एग्जांपल है कोनिन. एंड व्हाइल फ्यू आर इवन ऑप्टिकली इनएक्टिव. कुछ जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या है उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन देते नहीं, ना ही वो लेफ्ट डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और ना ही लिवोरोटेटरी है. ओके, and the last property is generally the alkaloids are bitter in taste and have pronounced physiological activity. Okay, so this was about the general properties. We have covered 3 to 4 points, just like introduction, occurrence, extraction, the total 6 steps and the chart for the extraction. Okay, and the classification of alkaloids, then the general properties of alkaloids. So today we will just stop here. In the next video we will cover the remaining parts of the alkaloids. One by one I will cover alkaloids, then vitamins and then pesticides. So in this way the chapter will be covered. So in this way we have completed the 50% portion of alkaloids. Okay, remaining portion जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे और इस तरह से 1 by 1 alkaloids, vitamins और pesticides जो है इसका हम टोटल सिलेबस जो है चैप्टर का कवर करेंगे. इसकी PDF नोट्स जो है PDF फॉर्मेट में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी नोट्स कंप्लीट करने के बाद. ठीक है, तब तक इस वीडियो को देखिए, आप इसके सेल्फ नोट्स बना दीजिए तब तक के लिए और उसके सेल्फ स्टडी कीजिए. मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पोर्शन के साथ. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.